रिदम लूथरा। तो आपका 20 मिनट से ज्यादा नहीं सेंड करेगा ये वाला जूम। ठीक है। अब एक स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन दिख रहा है तो वो बोलते जाएगा, ठीक है। स्क्रीन दिखाई हाँ दे दिख रहा रहा है। है अभी। हाँ। तो प्रतीक्षा, राइट? हाँ। तो आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है इधर में? रिटेल मर्जर एंड इंडस्ट्री। एक्विजिशन में हाँ हम्म। 1 year 6 months का एक्सपीरियंस है मर्जर एंड एक्विजिशन डोमेन में। ओके। आप पोस्ट क्वालिफिकेशन इधर ज्वाइन किया था इंडियन पेट्रोल में? इधर आपने 1 साल काम किया, फिर इन आपने ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज में काम नहीं, किया। वहां पे मैंने 8 months हाँ। काम किया था वहाँ। उसके बाद आप यहाँ पर 2 साल काम किया। तो इधर आपने क्या काम किया, एक हाँ, बार ब्रीफ करिए, व्हाट यू हैव डन आउट हियर। एक बार ब्रीफ करिए मेरे को। यहाँ पे जो करेंट कंपनी में काम करी थी, यहाँ इंग्लिश में पे आप। मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर, currently I'm working as an assistant manager in Ritex Industries Limited in Chennai. So basically we are used to track companies which are under insolvency and bankruptcy code. So whatever the provisions and the laws which is related to IBC, we actually deal with it. Like we have to track the companies which are under liquidation or which is under CARP. So our top level of managers, they actually used to check those type of companies which is actually aligning with our business activities. So basically, we used to track those type of companies which are having huge assets and solar companies, basically like those companies which are able to generate electricity through renewable sources of energy. So we basically acquired those type of companies or which are having more land. We actually acquired those and then we used to sell it off. In that way, also we used to do. So, what are when the things that we actually do before acquisition, like coordinating with the liquidator, coordinating with the resolution professional, and we have to first show our expression of interest. We have to submit all those documents related to it. व्हाट इट। सर आप म्यूट पे हो गए। म्यूट में नहीं है। आवाज आ रहा है मेरा? माय वॉइस इज कमिंग? इज माय वॉइस ऑडिबल? अजीब बात। Yes, sir. Yes. हाँ Is my सर voice आपका आवाज। audible? Ha, is my voice यस। audible? Right, right. So in the last point, you have written that conducted due diligence process and effectively collaborating with the external advisors such as legal counsel and auditors. Which company you have done this? Like recently, two companies we have acquired. A major company it is related to gas company and one is related to oil companies. So actually, like when we acquired those companies, like we have to thoroughly conduct the due diligence before acquiring it. Like if they have any land and also we have to actually see whether the title deeds are clear or not. So we have to accordingly coordinate with our legal team for that. So they used to help us like whether the title deeds are clear or not, whether it's related to companies or whether it is having any group concerns. So whether it is related to that or so they actually help us in that. So we have to coordinate with the legal team for that. This is what actually we do in the due diligence process. What are the areas you checked in the due diligence process? Title deeds, then Title deeds, we say we also check the contracts also, the letter of intent that we say that also should be properly like if both the companies are signing, the acquirer and the acquiring company. So for that contracts terms and conditions we actually have to check. Um, and if we say related to due diligence, the financial statements also we have to check of the company that we are going to acquire and the historical trends also the historical performance what how it was performing like in the last 5 years that also we need to check and if we are acquiring we have to prepare the financial models as well like how we are going to run it in the upcoming 5 years that also planning we have to actually done we actually have to do this is major resource this is majorly okay. what I have What was the name I've of the been two doing. companies which the merger was happening? The first was KS Oils Limited. That company is going to get listed in the coming few days. That was under liquidation. And one was Thermal Power Company. This is that is also a listed company only, KSK Mahanadi Power Limited. That is also under corporate insolvency resolution process. Both are under liquidation. No, KSK Mahanadi is under CRP. CRP process actually takes a long
time, because in liquidation, what happens that the company has been like the sale notice is actually published, and we come to know the reserve price, and then the auction is being conducted. So then we don't have to go a very long process. But in CRP process, what happens? We have to actually prepare the resolution plans, which is actually a very time-consuming process. Like, what is the resolution plan amount that we are going to give to the to the RP, to the resolution professional person? Like, what will be the amount that we are actually going to acquire that company? So what will be the repayment schedule for that? So resolution plan, actually, like CIP process, actually a very time consuming process, but liquidation is like that auction has been conducted in one day, and we actually acquire that company, and then just we have to sign the sales certificate and the letter of intent, and then Why the we merger actually was plan happening? accordingly how we are going to Why the merger was happening between the two merge. companies? Hmm. Merger because it was actually aligning with our business activities. So that's why we like it. The top decision that is actually taken by the high level of managers above us. So they actually used to like check, and it is if it is aligning with our business activities. So they used to tell that we are going to bid for this company. So we thoroughly evaluate about this company, what it is, and then accordingly we proceed forward. One company is already going for liquidation, okay? Then what was the reason of the merger? Yes. Already it's in litigation, liquidation process. What will be the benefit synergy out of it? If I try to find Like out? synergy, if Hmm. we see the benefits of merger, then we can say synergy is created, and we can have What is the access to new synergy? technologies. What is the synergy? Correct definition, I'm not able to I recall. know the synergy. What is the synergy? Okay, benefit. I know I don't want to ask the definition. What's the synergy out of the merger when one is already in the liquidation stage? Synergy, Means what the benefit out I of don't this merger? I wanted to know that. If you are doing merging now, both companies are like doing we merging and you are yeah. doing So due like diligence. yeah, we can have access to the new technologies. Less competition will be there. More market capitalization will be there. I want to know the actual reason. You have read the documents, both of them. So, what was the actual reason why they were merging? Were they So related we party? actually Were they related party? no. Sister concern? No. No, the corporate debtor should not be a related party actually, the company that we are going to acquire should not be the related party of the corporate debtors. So then only we are going to merge. You checked that, okay? And what was the turnover of the Yeah, company which was in liquidation? it was more than somewhere around 800 to 900 crore. And the other company? And the other company was something more than 1000 to 1200 crore. 1,000 to 1,200 crore. How was the business of the other company? Is it going smooth? Or it was like this company only? The major business activities were not being conducted from the last 1 year. Uh, so it was not operation from the last 1.5 year. The other It was company, not one going company very is already in smooth. liquidation stage, you said, okay. The other company, how was the Yeah. business? How was the business of the other company? It was also under liquidation stage or the business was No, going it smooth? was under CIRP. It was under CIRP. The both of them are just in trouble only, right? Yes, yes, because they were not operational. They were not able to meet its debt and all. So then only it came into liquidation, because the operational creditors only used to file against them, against the High Court. Then only it comes under liquidation, or it comes under into CARP. Then what you did in the due diligence process, you check the title deeds. What was the final conclusion when you did the due diligence? Not thoroughly, yeah, only the due diligence related to financial due diligence and related to title deeds of the land and all, that only we used to do. Actually, we have a separate department for each and everything. So the legal team actually used to coordinate with the legal diligence, like the legal related procedures are actually being done by the legal department. You did the And we financial have due also the diligence. corporate team. You did Yeah, financial. like yeah, like we have to actually thoroughly evaluate the financial statements of the company that we are going to acquire.
we have to calculate the ratios. Now, who are the other competitors in that industry? That also we need to go through it Which ratios you and evaluate, calculated? Which ratios you calculated? like the debt equity ratio, the EBITDA ratio, profitability ratio is the must that we need to calculate and understand. सब लिख लीजिए And आप लोग EBITDA is the ratios. most important. Ratios, profitability ratio, debt equity ratio, then Yes, profitability ratio, liquidity ratios, and the turnover ratios also we need to evaluate. ratio सारा check किए. Did you evaluate the quality of earnings and quality of assets? No. Sir, I ये don't सब have a better understanding of what quality of assets is. Quality of earnings समझ में आया, लेकिन quality of assets क्या होता है वो मेरे को clear नहीं है उसका. quality of earnings क्या होता है? Quality of earnings actually represents the accuracy of the financial information. Like there are certain things which actually affect the quality of earnings. Like The, for example, it actually मतलब it gives a true like it gives a true reflection of the overall company's operational performance क्या है of the company. quality of earnings So कैसे quality of निकालेंगे? earning, How will calculate quality of earnings? अगर सेल्स का फिगर दे देंगे तो like the revenue actually impacts the quality of earnings, revenue recognition, how we're actually recognizing the revenue. What are the accounting policies that are being used to recognize the revenue that also affects the quality of earnings. And the expense recognition also affects the quality of earnings. Whether it is being recorded, the transactions are being recorded on the cash basis or on the accrual basis, that also affects the quality of earnings. The working capital adjustment also affects the quality of earnings. How well the company is able to manage its current assets and current liabilities, that also affects the quality of earnings. क्वालिटी And ऑफ if अर्निंग में there क्या is क्या चीज आप any एडिशनल changes, लेस आपको कुछ अगर लेस करना होगा इफ यू हैव टू लेस फ्रॉम क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स कोई आइटम को आपको लेस करना है तो वो कैसा आइटम होगा एग्जांपल then I don't know. जैसे कोई वन टाइम बोलिए अलकेस हाँ बाकी वीडियो ऑन हाँ, Non-recurring करके वन टाइम nature, इवेंट या अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस अगर होता है तो वो सब हम लोग लेस करते हैं. non-recurring वन nature टाइम of, नॉन रिकरिंग नेचर कोई वन टाइम रेवेन्यू हुआ है वन समथिंग टाइम, विच इज अ हाँ वन करेक्ट. टाइम रेवेन्यू तो वो आप हटा दोगे उससे ठीक है तो वो सब चीज हटा दोगे क्वालिटी ऑफ अर्निंग से तो अब निकालोगे इसका one-time रियल profit also. एडजस्टेड ईबिटा निकालोगे आप बेसिकली एडजस्टेड ईबिटा ओके ओके. ठीक है तो एडजस्टेड ईबिटा में आने का कोशिश करोगे ठीक है एक होता है आपका क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स एक डेट नेट डेट चेक करता है और ये लोग एक देखता है आपका क्वालिटी ऑफ एसेट्स ठीक है तो ये सारा चीज ये लोग ज्यादा करके पूछेगा The तो quality चांस of assets क्या होता है? क्वालिटी ऑफ एसेट्स एसेट्स जैसा है आपका फिक्स्ड एसेट्स वगैरह में कितना आपका खुद का प्रॉपर्टी है कितना मॉर्गेज में होके रखा है किसका आपका ही है कि एसेट की किसी और का है आपने लेके बस दिखा दिया मेरी एसेट है ओके क्वालिटी ऑफ एसेट्स ठीक है तो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस क्या हो गया देखिए अभी प्रतीक्षा ने किया जैसे तो अगर आप कोई चीज आज सामान खरीदता है तो उसका भी अब ड्यू डिलीजेंस करके ही सामान करता है जिसको हम लोग रिसर्च बोलता है हाँ भाषा में रिसर्च यू डू राइट तो यहाँ पर में जब कंपनीज का मर्जर एक्विजिशन होता है तो ड्यू डिलीजेंस होता है ड्यू डिलीजेंस भी आपका अलग अलग टाइप का होता है लीगल ड्यू डिलीजेंस प्रतीक्षा बोला फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस ये करता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, सीए करता है ऑपरेशनल ड्यू फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. डिलीजेंस आपका लॉयर करता है लीगल ड्यू डिलीजेंस कोई करता है कमर्शियल Technical ड्यू due diligence. डिलीजेंस अलग अलग ड्यू डिलीजेंस होता है आईटी ड्यू डिलीजेंस तो अलग अलग टाइप का ड्यू डिलीजेंस होता है समझ गए ना तो हम लोग करता है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस से समझ में आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ड्यू डिलीजेंस को फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस बोलता है बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो करंट करंट ईयर का और पास्ट 5 इयर्स का देख के उसका हो गया हम लोग फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं तो ड्यू डिलीजेंस का मतलब ही समझ में आ रहा है ना ड्यू डिलीजेंस ऑडिट नहीं है ये ऑडिट तो हम लोग करता है क्यों ऑडिट क्यों करता है हम लोग ऑडिट क्यों करता है Statutory requirement. क्योंकि सरकार को चाहिए ऑडिट इसलिए करता है ना Statutory requirement. यहाँ पर में हम लोग ड्यू डिलीजेंस क्यों करता है ड्यू डिलीजेंस इंटरनल ऑडिट टाइप का ही हो गया इंटरनल ऑडिट में बेसिकली हम लोग ड्यू डिलीजेंस करता है कि इंटरनल फ्रॉड फ्रॉड पकड़ने के लिए ड्यू डिलीजेंस क्यों करता है कि ये जो मर्जर एक्विजिशन होगा ये सब होगा करके फायदा है कि नुकसान है फायदा है कि नुकसान है मान के चलिए टाटा स्टील को आज का डेट में अक्वायर करना है या हाइव ऑफ करना है कोई बिजनेस यूनिट नहीं चल रहा है या दो को अक्वायर करना है एक दूसरे को तो सिनर्जी है कि नहीं है क्योंकि कितना बार देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज बीन सीन ओके दैट मर्जर एक्विजिशन से लॉसेस होता है प्रॉफिट बहुत कम टाइम में होता है
तेरे को पहले ड्यू डिलिजेंस कराना बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट होगा कि नुकसान तो नहीं होगा, समझ गए ना। तो यही चीज है, तब आप कोई भी बिजनेस यूनिट अक्वायर कर रहा है या मर्जर हो रहा है या हाइव ऑफ कर रहा है तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होगा। उसके साथ आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे प्रतीक्षा ने ओवरऑल मर्जर एक्विजिशन का काम किया है कि ना, जो बाकी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है बहुत जगह से, राइट। अप्रूवल वगैरह का Yes, काम, correct. काफी सारा काम होता है मर्जर एक्विजिशन में। तो कंपटीशन कमीशन एमएनए टैक्स का भी काम होता है, वो सारा काम होता है। टैक्स ड्यू डिलीजेंस होता है, टैक्स का भी ड्यू डिलीजेंस हम्म, होगा। टैक्स ड्यू डिलीजेंस में क्या होगा आपको देखना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में कितना लिटिगेशन है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का लिटिगेशन। फाइनेंशियल डिलीजेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेना देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है लोग का, करके फायदा होगा कि नुकसान होगा, समझे। तो अगर को फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस पूछेगा तो ये मोटा मोटी आप बता पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। वाई देयर इज अ नीड ऑफ ड्यू डिलीजेंस, कि सिनर्जी हो रहा है कि फायदा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स वही रिपोर्टेड अर्निंग्स असेस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स, ठीक है। कि जो अर्निंग्स अभी दिखा रहा है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, कि उसमें वन टाइम अर्निंग तो नहीं जुड़ के रखा है, फ्यूचर में भी इतना अर्निंग्स होगा कि अभी जो अर्निंग हो रहा है फ्यूचर में भी इतना अर्निंग्स होगा कि नहीं होगा। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में आपको देखना पड़ेगा कि इनकम, एक क्वेश्चन ये लोग पूछता है कि रेवेन्यू ड्यू डिलीजेंस कैसे करेंगे। तो रेवेन्यू ड्यू डिलीजेंस में दो तीन चीज होता है, आपको हो सकता है वो लोग दे दे कोई एक्सेल सीट, सेल्स का रजिस्टर पकड़ा दे, ठीक है। सेल्स का डेटा पकड़ा देगा आपको, रजिस्टर पकड़ा देगा डमी डेटा, और बोलेगा इसको एनालाइज करो रेवेन्यू को, और प्रोडक्ट का नाम दे देगा। तो आपको इसमें दो तीन चीज देखना है कि आपका रेवेन्यू कौन सा प्रोडक्ट से आ रहा है। कंसंट्रेशन हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू, दिस इज गुड। ओके, तो उसका रेवेन्यू मान के चलो टीसीएस का कर रहे हैं, तो टीसीएस का रेवेन्यू कौन सा प्रोडक्ट से आ रहा है और कौन सा लोकेशन से आ रहा है। और कोई पर्टिकुलर ये लोग का डेटर सेंट्रिक है कि कैश सेंट्रिक है, मतलब ये लोग का जो, जिससे ये लोग का पैसा मिल रहा है वो डेटर पैसा टाइमली बेसिस में दे रहा है कि बहुत दिन तक ब्लॉक करके रखा है आपका पैसा को, जिससे वर्किंग कैपिटल का तो लफड़ा नहीं हो। क्लियर अबाउट इट ना वर्षा, क्लियर हो रहा है। ड्यू डिलीजेंस एसीसीए को लेता है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसी को भी ले सकता है ड्यू डिलीजेंस में, जिसको भी नॉलेज होगा उसको ले लेता है, ठीक है। फाइनेंस का कोई भी प्रोफाइल में जिसका नॉलेज होता है उसको लेता है, याद रखिएगा। आपका आर्टिकलशिप कोई मतलब नहीं है, आपने क्या करके आया, आपने क्या डिग्री है, याद रखने, जिसके पास नॉलेज है लोग को ले लेगा लोग, ठीक है। तो यही बात है, जो काम से मतलब है लोगों। तो जैसे मैंने जो बताया ना आपको ये वाला चीज कि ये लोग फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस बोलेगा तो रेवेन्यू का ड्यू डिलीजेंस भी बोल सकता है आपको। तो रेवेन्यू ड्यू डिलीजेंस में आप लोग को एक सेल्स का रजिस्टर पकड़ा सकता है वो लोग, ठीक है। एक्सेल का रजिस्टर पकड़ा देता है, डमी डेटा दे देगा और बोलेगा इसको एनालाइज करो खुद से। तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले तो प्रोडक्ट वाइज बाइफरकेट कर लीजिएगा रेवेन्यू, लोकेशन वाइज अगर लोकेशन देके रखा होगा तो लोकेशन वाइज बाइफरकेट कर लीजिएगा रेवेन्यू को। उसमें आपका यूज होगा एक्सेल, एक्सेल का फंक्शंस वगैरह भी आना चाहिए। तो एक्सेल ले लो तो बहुत अच्छा से दिखता है कि आपको एक्सेल अच्छा से आता है कि नहीं आता है। तो आपको पीवेट टेबल वगैरह वो सब देख के आके फिल्टर सॉर्ट लगा के आपको उसका निकालना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, फिर बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट से इनका ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ये प्रोडक्ट से कमती रेवेन्यू आ रहा है, ये लोकेशन इनका मेन लोकेशन है। अब आपको देखना पड़ेगा, उन लोग पूछना पड़ेगा फिर कि नेक्स्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये लोकेशन से सेल होगा कि नहीं होगा। मान के चलो ये लोग का सेल हो रहा है, अब यहाँ पर में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये लोग का फार्मेसी कंपनी का जो मेन आपका मेडिसिन का जो कमाई होता है वो कोई पेटेंट से आता है, पेटेंट वगैरह से आता है। तो पेटेंट से कमाई आता है, मे बी उसका पेटेंट का लाइसेंस खत्म हो गया हो तो वो आपको पता लगाना पड़ता है। तो इसलिए इसमें वर्ड ये यूज किया ना, अब आपको समझ में आ रहा है ये वर्ड का मतलब थोड़ा बहुत। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर अर्निंग, कल रिपोर्टेड अर्निंग से नहीं होगा, बाद में फिर सस्टेनेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। We uncover the irregular deficiency in the financial info provided by the target company. टारगेट कंपनी होता है, एक टारगेट, एक और कौन सा होता है प्रतीक्षा, एक टारगेट होता है, एक बाइंग कंपनी, अक्वायरिंग कंपनी है ना। चलिए, फिर एसेट लाइबिलिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। acquiring, हाँ जी, क्या बोल रहे थे। acquired and acquiring company. हाँ, अक्वायर्ड एंड अक्वायरी कंपनी, ठीक है। ये सब ज्ञान है, नेगोशिएशन पोजीशन, ठीक है। व्हाट मोटिवेट्स योर इंटरेस्ट इन एफडीडी प्रोफाइल, बोलना मैं तो मर्जर एक्विजिशन में काम की हूँ तो मैंने ड्यू डिलिजेंस का काम बहुत क्लोजली किया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं ज्यादा करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ अपना वो, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत वो दिखाना पड़ेगा कि मैंने ड्यू डिलिजेंस दो तीन जगह का किया है थोड़ा बहुत, और ऐसे मैंने ओवरऑल काम किया ड्यू डिलिजेंस थोड़ा थोड़ा किया है मैंने। थोड़ा बता देना दो तीन कंपनी का नाम लेके, ठीक है। रेशियोज Okay. वगैरह तो बताया था। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल फॉर एफडीडी,
ठीक है, इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ये सब रिस्क एरियाज, ये सब वो बोल दिया, अपने टारगेट कंपनी का देख लिए, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स देख लिए, एडजस्टमेंट टू ट्रू पिक्चर, फिर वर्किंग कैपिटल क्या लिखा है इसमें, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, टारगेट का वर्किंग कैपिटल देख लेंगे कितना है, एंड आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर द इम्प्रूवमेंट और द पोटेंशियल रिस्क, मतलब उसका वर्किंग कैपिटल कैसा है, ऑपरेटिंग साइकिल कैसा है, कोई एरियाज है कि पैसा जल्दी आ रहा है, एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल सपोर्ट द ऑनगोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स है और बहुत बाकी पेंट इंडस्ट्री है, तो एशियन पेंट का वर्किंग कैपिटल बहुत स्ट्रांग है बाकी पेंट इंडस्ट्री से, तो उसका शेयर प्राइस में भी उसका बेनिफिट होता है, को फटाफट जल्दी जल्दी मिल जाता है सब चीज, तो वर्किंग कैपिटल देखता है हर जगह कि कितना स्मूथ गोइंग ऑपरेशन, कोई झबला तो नहीं हो रहा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछ लिया तो करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कैश फ्लो एनालिसिस देख लिए कि कैश फ्लो कैसा है, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन रिकरिंग कैश फ्लोज तो नहीं है। ठीक है, आपको एक पूछ सकता है कि जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू किससे आ रहा है, तो आपको दो चीज, रेवेन्यू आपको पूछेगा कि आप जब रेवेन्यू को एनालाइज करेगा तो क्या क्या चीज देखेगा, तो एक तो हम देखेगा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ये लिख लीजिएगा, एक देखेंगे आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, एक मिनट, एक देखेंगे आप रेवेन्यू को जब एनालाइज करेंगे, व्हेन यू एनालाइज अ रेवेन्यू, एक मिनट में ग्रुप में लिख रहा हूँ, रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है, रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक होता है रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है, तो रेवेन्यू एनालिसिस होता है, रेवेन्यू एनालिसिस होता है, तो रेवेन्यू व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल चेक, व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल चेक व्हाइल एनालाइजिंग रेवेन्यू, तो एनालाइजिंग द रेवेन्यू क्या क्या पॉइंट्स आप देखोगे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि आप रेवेन्यू जब देखोगे तो क्या क्या पॉइंट्स आप देखोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल चेक व्हाइल एनालाइजिंग द रेवेन्यू। ठीक है, एक बार सेम लिंक में वापस आ जाइए आप सब जन, हाँ, ज्वाइन द सेम लिंक, ज्वाइन द सेम लिंक, सेम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए।